Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today in this lecture we will discuss and learn about the mechanism of gas exchange and temperature regulations in amphibians. And we will also discuss the reasons of disappearance of frogs and salamanders which are disappearing from this world very rapidly. Now we will start our topic with a question: why terrestrial animals spend less energy for gas exchange than aquatic animals? The answer of this question is that air contains 20 times more oxygen than water. Therefore, terrestrial animals spend less energy for gas exchange than aquatic animals. अब इसका आंसर क्या है कि हवा में 20 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती पानी की निस्बत। इसी वजह से अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को बहुत कम एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती फॉर गैसियस एक्सचेंज और फॉर ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन। बट एक्सचेंज ऑफ गैसेस रिक्वायर मॉइस्ट सरफेसेस। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि मॉइस्ट सरफेस हो जहाँ से गैसियस एक्सचेंज हो रहा हो। So terrestrial animals lost water during exposure of respiratory surfaces to air. अब जब रेस्पिरेटरी सर्फेसेस को वो एयर के साथ कांटेक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, ज़ाहरी बात है वाटर लॉस भी होगा. And there are three types of respiration in amphibians, or we can say that amphibians use three respiratory surfaces for gas exchange. And these respiratory surfaces include skin, mouth and lungs. Amphibians can respire through their skin or via their mouth and lungs. And the respiration through skin is known as cutaneous respiration, and through mouth is known as buccal or buccopharyngeal respiration, and through pulmonary through lungs is known as pulmonary respiration. So in this image you can see that the lining of mouth of a frog and the lungs of a frog as well as its moist skin. These are the three respiratory surfaces through which a frog can respire: moist skin, lungs and the lining of the mouth, or we can say that buccopharyngeal respiration. Now we will discuss in detail about the types of respiration in amphibians, and the first one is cutaneous respiration. Cutaneous respiration can be defined as gas exchange through skin is called cutaneous respiration. The skin of amphibians is kept moist and it is richly supplied with blood capillaries. Therefore, their skin functions as a respiratory organs. But in case of frogs and toads, they depend more heavily than do salamanders on lung breathing. Nevertheless, skin provides an important supplementary avenue for gas exchange in endurance, especially during hibernation in winter. Even when lung breathing predominates, carbon dioxide is lost primarily across the skin, while oxygen is absorbed primarily across the lungs. So, in case of amphibians जिनमें frogs और toads आ जाते हैं ख़ास तौर पे endurance, तो उनमें respiration क्या होती है, वाटर के अंदर भी होती है और लैंड के अंदर भी होती है. सो उनके जो स्किन होती है उसके थ्रू वो रेस्पायर कब कर रहे होते हैं, जब वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं. नॉर्मली वो लंग से रेस्पायर करते हैं, लेकिन जब हाइबरनेशन वाले स्टेट में जाते हैं तो वो अपनी स्किन से रेस्पायर करना शुरू कर देते हैं. बट इन केस ऑफ सैलमेंडर्स 30 to 90% ऑफ गैस एक्सचेंज अकर थ्रू स्किन. अब सैलमेंडर्स जो है अपनी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, वो अपनी स्किन के ज़रिए ही यानी कि जो है वो रेस्पायरेशन कर रहे होते हैं. कौन सी वाली रेस्पायरेशन? क्यूटेनियस रेस्पायरेशन. So in this slide we will discuss about the generalized mechanism of respiration in frog. In order to draw air into its mouth, the frog lowers the floor of its mouth, which causes the throat to expand. Then the nostrils open, allowing air to enter the enlarged mouth. The nostrils then close and the air in the mouth is forced into the lungs by contraction of the floor of the mouth. To eliminate the carbon dioxide in the lungs, the floor of the mouth moves down, drawing the air out of the lungs and into the mouth. Finally, the nostrils are opened and the floor of the mouth moved up, pushing the air out of the nostrils.
सो अब इसको हम मैकेनिज्म को 4 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट स्टेप में देखें तो एयर को माउथ में लाने के लिए फ्रॉग क्या करता है, ये अपना जो फ्लोर ऑफ द माउथ है, यानी जो माउथ का फ्लोर है उसको नीचे की तरफ लेके आता है, ये वाले एरिया को जो, तो इसको ये नीचे की तरफ लेके आएगा, ऐसे खींचेगा। इससे क्या होगा, एयर यहाँ पे अंदर की तरफ ड्रा हो जाएगी, यानी खींची चली आएगी एयर बक्कल कैविटी की तरफ। तो ये फर्स्ट स्टेप है। तो इससे क्या होगा, जब तो ये वाला एरिया इसमें एक्सपैंड अब कर जाएगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर एरिया ये वाला एक्सपैंड कर जाएगा। एंड द नॉस्ट्रिल्स ओपन अलाउइंग एयर टू एंटर द एनलार्ज्ड माउथ। उसके नॉस्ट्रिल्स भी ओपन हो गए हैं और माउथ भी ओपन हो गया है, तो यहाँ पे एयर एंटर हो जाएगी बक्कल कैविटी की पॉकेट्स में। एंड इन सेकंड स्टेप द ग्लॉटिस ओपन्स। अब अगर आप इसमें फ्रॉग की जनरलाइज स्ट्रक्चर देखें तो ये इसका माउथ है, ये नॉस्ट्रिल्स हैं या नेयर्स हैं, ये इसकी बक्कल कैविटी है या चीक कैविटी है, ये इसके जो है लंग्स हैं यहाँ पे। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि इसका ये जो ग्लॉटिस एरिया है ये ओपन हो जाएगा, यानी यहाँ से एयर, अब इससे तरफ वाली जो एयर है ये वाली इसको बाहर निकालना है, जो यहाँ पे पहले स्टेल एयर थी या कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, और बाद में यहाँ पे जो एयर इसने ड्रा की है उसको यहाँ पे लाया जाएगा और इसको बंद कर दिया जाएगा। So the glottis opens, elastic recoil of the lungs and compression of the chest wall reduces the lung volume। तो इससे लंग वॉल्यूम जो है कम हो जाएगा। अब यहाँ पे कंप्रेशन हो रही है, इस तरफ से भी इस तरफ से भी, ये एरो से आपको दिखाया गया, तो ये लंग वॉल्यूम यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। और सो एयर फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग्स एंड आउट ऑफ द माउथ एंड नेयर्स। इस तरह से फिर एयर जो है लंग्स में से भी बाहर निकल जाएगी, माउथ में से भी और नेयर में से भी बाहर निकल जाएगी। एंड इन थर्ड स्टेप द माउथ एंड नेयर्स क्लोज। अब जो एयर यहाँ पे प्रेजेंट थी इसके जो बक्कल कैविटी में, जो फ्रेश एयर थी, अब उसको यहाँ पे लंग्स की तरफ चूंकि लेके जाना है, इसलिए इसका माउथ भी क्लोज हो गया है और इसके नेयर्स भी क्लोज हो गए। द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी राइजेस। अब बक्कल कैविटी की ये वाली जो फ्लोर है ये ऊपर की तरफ जा रही है, एरो से आपको दिखाया गया, ये राइज कर रही है। पहले ये क्या हो गई थी, ये डाउन हो गई थी नीचे की तरफ एयर को लाने के लिए अंदर, अब ये वापस ऊपर की तरफ जा रही है, राइज कर रही है। सो एयर इज पुश्ड इनटू द लंग्स। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे अब ये एरिया कम हो जाएगा तो एयर इस तरफ को पुश कर जाएगी, क्योंकि इसके नॉस्ट्रिल्स भी बंद हैं और माउथ भी क्लोज है। एंड इन द लास्ट स्टेप द ग्लॉटस इज क्लोज्ड। अब ये लास्ट स्टेप में क्या हुआ कि ग्लॉटस भी यहाँ पे क्लोज हो गया है। द ग्लॉटिस क्लोजेस, गैस एक्सचेंज अकर्स इन द लंग्स। इसी वजह से अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है लंग्स के अंदर जो है वो बॉडी सेल्स ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो यहाँ पे लंग्स के अंदर वापस लाई जाएगी, यानी कि जो स्टेल एयर है वो यहाँ पे आ जाएगी, जो फ्रेश एयर है वो बॉडी टिश्यूज़ ले लेंगे कैपिलरीज के थ्रू, जो है गैशियस एक्सचेंज यहाँ पे लंग्स में हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये फ्रॉग के अंदर एक जनरलाइज्ड रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म होता है। Now in this slide we are going to discuss about the second mode of respiration in amphibians. It is known as buccopharyngeal respiration. The other names include mouth breathing or buccal breathing, etc. So the gas exchange through moist surfaces of mouth and pharynx is termed as buccopharyngeal respiration, and it is only 1 to 7% of total gas exchange. It means that it contributes only 1 to 7% of the total gaseous exchange in case of amphibians. And the third and last mode of respiration in amphibians is pulmonary respiration, which is also known as lung breathing or lung respiration. It occurs by buccal pump mechanism, which we will discuss in the next upcoming slide. Muscles of mouth and pharynx create a positive pressure which forces air into the lungs. Most amphibians possess lungs, and lungs are absent in plethodontid salamanders. Lungs of salamanders are relatively simple sacs, but the lungs of anurans like frogs and toads are subdivided into chambers, and these chambers are further subdivided into small structures which are known as favuli, which increases the surface area for gas exchange. Favuli of frog lungs are much larger than alveoli of amniotic vertebrates. Therefore, frog lungs have consequently small surface area for gas exchange. अब अगर हम इसमें लास्ट पॉइंट डिस्कस करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बाकी एमनियोटिक वर्टिब्रेट्स के साथ फ्रॉग्स के जो फेव्यूलाई हैं उनको कंपेयर करें तो फ्रॉग के फेव्यूलाई का साइज जो है इट इज़ मच लार्जर देन एल्व्यूलाई। अब ह्यूमन बींग्स में जैसे एल्व्यूलाई होते हैं लंग्स के जो फंक्शनल यूनिट्स हैं, तो फ्रॉग्स के अंदर जो फंक्शनल यूनिट्स हैं लंग्स के, दीज आर नोन एज फेव्यूलाई। तो फेव्यूलाई का लार्जर साइज होने की वजह से सरफेस एरिया जो है वो कम है, स्मॉल सरफेस एरिया है फॉर गैशियस एक्सचेंज।
तो किसी चीज़ का जितना ज़्यादा साइज़ लार्ज होगा उतना ही उसका सरफेस एरिया कम होता चला जाएगा। अब एल्वियोलाई का चूंकि साइज स्मॉल होता है इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो इसका सरफेस एरिया रिलेटिवली ज़्यादा होगा फॉर गैशियस एक्सचेंज। नो डाउट फेवियोलाई का भी सरफेस एरिया ज़्यादा है, लेकिन अगर हम उसको कंपेयर करेंगे एमनियोटिक वर्टिब्रेट्स के साथ, तो कंपैरेटिवली जो है एमनियोटिक वर्टिब्रेट्स के हिसाब से फ्रॉग्स के लंग्स का सरफेस एरिया जो है वो कम बन रहा है for gaseous exchange. Now in this slide we will discuss about the lungs of frogs. Lungs are supplied by pulmonary arteries which are derived from the sixth aortic arches, and blood returns directly to the left atrium by pulmonary veins. Frog lungs are ovoid, elastic sacs with their inner surfaces divided into a network of septa, which is subdivided into small terminal air chambers called fevuli. Fevuli of frog lungs are much larger than alveoli of amniote vertebrates, and consequently frog lungs have a smaller relative surface available for gas exchange. यानी फ्रॉग के जो अगर हम लंग्स की बात करें तो वो ओवाइड हैं और इलास्टिक सैक्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इस इमेज के अंदर देख सकते हैं कि ये ओवल शेप की हैं, यानी बैजवी शक्ल की हैं, और इलास्टिक सैक्स होती हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, यानी कि सेप्टा होते हैं। और सेप्टा के अगर मज़ीद आगे फर्दर सब डिवीज़न की जाए तो जो उसके अंदर स्मॉल टर्मिनल चैम्बर्स, एयर चैम्बर्स बनते हैं, उनको क्या कहते हैं, फेवियोलाई कहते हैं। तो फेवियोलाई इसके अंदर पाए जाते हैं। As we have discussed in the last slide that the pulmonary ventilation occurs by buccal pump mechanism. In this mechanism, the muscles of the mouth and pharynx create a positive pressure, and this pressure forces air into the lungs. So हम इसी प्रेशर को डिस्कस करेंगे कि माउथ और फेरेंक्स के जो मसल्स हैं वो कैसे जो है पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं। यानी ये जो माउथ है और ये फेरेंक्स है इसका, तो यहाँ वाला एरिया जो है ये कैसे पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करता है। अब इसमें देखेंगे व्हेन द जॉ इज रेज्ड, जब इनका जॉ ऊपर की तरफ उठता है यानी रेज किया जाता है, द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द माउथ कैविटी इंक्रीजेस। अब जो माउथ कैविटी में एयर का प्रेशर होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी रश करेगी एयर अंदर की तरफ। सेकेंड स्टेप में देखें फ्रॉग्स, फर्स्ट स्टेप में इंस्पायरेशन में क्या था कि फ्रॉग गल्प्स इन एयर, फ्रॉग एयर को निकल रहा है या गल्प कर रहा है। इन सेकेंड स्टेप air moves from the mouth cavity which is having a high pressure to the lungs which are having a low pressure. तो अब एयर जो है यहाँ से माउथ कैविटी से ये लंग्स की तरफ जो है मूव कर रही है। ये माउथ कैविटी है, ये लंग्स हैं इसके। तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ है, वो क्लोजेज माउथ एंड नेयर्स। अब जब लंग्स की तरफ एयर चले जाएगी तो अपने माउथ और नेयर्स को क्लोज कर लेगा फ्रॉग। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, इट रेजेस जॉ एंड टंग टू मेक माउथ कैविटी स्मॉल। अब अपने ये जाज को भी ऊपर की तरफ रेज कर रहा है और इसके अलावा अपनी टंग को भी ऊपर की तरफ रेज करेगा ताकि माउथ कैविटी स्मॉल रह जाए और एयर वापस ना जा पाए और यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज उसका हो सके, जो इसने फ्रेश एयर को जो है वो इनटेक किया है। तो इस तरह से यहाँ पे इसके अंदर गैशियस एक्सचेंज का मैकेनिज्म लंग्स के अंदर इसके हो सकेगा। दिस इज़ नोन एज पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग, यानी जिसमें क्या हुआ है कि लंग्स के अंदर जो है एयर प्रेशर कम है और बाहर से जो एयर रश कर रही है अंदर की तरफ उसका एयर प्रेशर ज़्यादा है। तो इस तरीके से एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यानी बाहर से लंग्स की तरफ मूव करेगी। Now in this slide we will discuss about the mechanism of inspiration and expiration in frog. अगर इंस्पायरेशन फ्रॉग ने करनी हो तो उसमें बक्कल कैविटी जो है इसकी ये वाली एक्सपैंड कर जाता है, यानी ये बाहर की तरफ है। आप देख सकते हैं एरो से दिखाया गया कि ये एक्सपैंड कर रहा है एरिया इसका। एयर इज ड्रॉन इनटू बक्कल कैविटी फ्रॉम आउटसाइड एंड लंग्स। अब जो है वो बक्कल कैविटी में जो है बाहर की तरफ से भी हवा आ रही है और जो लंग्स हैं उसके वहाँ से भी एयर इसमें बक्कल कैविटी में आ चुकी हुई है। सेकेंड स्टेप में अगर हम देखें एक्सपायरेशन में क्या होगा, बक्कल कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब बक्कल कैविटी जो है यहाँ पे इसकी कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी है और एयर जो है इट इज़ फोर्स्ड आउट ऑफ नॉस्ट्रिल्स एंड एयर इज़ फोर्स्ड इनटू द लंग्स। अब कुछ एयर जो है यहाँ पे जो बक्कल कैविटी की थी वो नॉस्ट्रिल से बाहर निकल गई है, जो इसमें स्टेल एयर थी, जो पुरानी एयर थी कार्बन डाइऑक्साइड वाली, और जो ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर थी वो यहाँ पे इसके लंग्स में आ चुकी हुई है और इसी वजह से अब इसमें कुछ मिक्सिंग हो जाती है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि सम मिक्सिंग ऑफ एयर।
यानी फ्रेश एयर और स्टेल एयर जो थी वो दोनों में यहाँ पे जो चूँकि बकल कैविटी में थी इस एरिया में मौजूद, तो इसीलिए उसके अंदर क्या हो चुकी है, कुछ ना कुछ मिक्सिंग हो चुकी हुई है। तो एयर अब इस तरीके से जो है वो इंस्पायरेशन भी होती है और एक्सपायरेशन भी एयर की होती है इन केस ऑफ फ्रॉग्स। Now we will discuss about the ratios of different methods of gas exchange, and we will discuss in detail the advantages of gas exchange with lungs. Amphibians have more complex exchange activity through lungs with the increase of environmental temperature. अब अगर एनवायरमेंटल टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे ही एक्टिविटी भी एम्फीबियंस के अंदर गैस एक्सचेंज की थ्रू लंग्स जो है वो बढ़ती चली जाएगी। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल आपको दी गई है कि अगर हम 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखें तो 70% जो है गैस एक्सचेंज जो है इट अकर्स थ्रू द स्किन एंड माउथ लाइनिंग ऑफ द फ्रॉग 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द गैस एक्सचेंज थ्रू स्किन एंड माउथ रिमेन्स द सेम बट पल्मोनरी रेस्पिरेशन इंक्रीजेस, यानी लंग की रेस्पिरेशन जो है अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो बढ़ती चली जाएगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड द गैस एक्सचेंज थ्रू स्किन एंड माउथ इज अबाउट 30% ऑफ द टोटल गैस एक्सचेंज। तो वो तकरीबन माउथ या स्किन से अगर बात की जाए तो वो 30% ही गैस एक्सचेंज का रहेगा, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लंग से जो गैसियस एक्सचेंज होगा वो 70% तक हो जाएगा। वैसे अगर आप देखें तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो स्किन और माउथ से 70% गैस एक्सचेंज हो रहा था, लेकिन अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो स्किन और माउथ से 30% गैस एक्सचेंज होगा और लंग्स से गैसियस एक्सचेंज जो है वो 70% तक हो जाएगा, यानी कि जो है यानी बढ़ जाएगा। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ क्यूटेनियस एंड बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन टू टोटल गैस एक्सचेंज इज रिलेटिवली कॉन्स्टेंट, यानी अब ये नहीं होगा कि अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज कर गई है तो गैस एक्सचेंज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा थ्रू स्किन और थ्रू माउथ, बल्कि सिर्फ लंग्स में से होगा कि जैसे जैसे जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो लंग्स के जो गैसियस एक्सचेंज है वो ज़्यादा हो जाएगा। यानी जैसे आपको एग्जांपल दी थी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लंग्स का जो गैसियस एक्सचेंज था वो बढ़ता चला जा रहा था, यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन बढ़ रही थी, जबकि जो स्किन के थ्रू या माउथ के थ्रू रेस्पिरेशन थी वो कांस्टेंट थी, वो चेंज नहीं हो सकती है। तो विद द इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट आप कह सकते हैं कि देयर द क्वांटिटी ऑफ गैस एक्सचेंज अक्रॉस these surfaces cannot be increased across cutaneous or buccopharyngeal surfaces. Now we will discuss about the mode of respiration through gills in amphibians. Amphibians larvae in case of frogs and toads, and some adults such as axolotl respire by gills. Axolotls are basically the new tenic salamander which are related to tiger salamander, and they are colloquially termed as walking fish, यानी इनको आम जुबान में walking fish का नाम दिया गया है, एक जुबान ज़द आम में इनको ऐसे कह दिया जाता है। But they are not a fish, they are belonging to amphibians, and axolotls are unusual among amphibians in that they reach adulthood without undergoing metamorphosis. इनमें metamorphosis भी नहीं होती है। Instead of developing lungs and taking to the land, adults remain aquatic and gilled. So the cartilaginous rods are present between embryonic pharyngeal slits. अब यहाँ पे आप pharyngeal slits नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाएंगे कि किस तरह के होते हैं, उनके दरमियान कार्टिलेजिनस रॉड्स पाई जाती हैं। दीज रॉड्स सपोर्ट 3 पेयर्स ऑफ गिल्स। अब यहाँ पे इसके ये 3 पेयर ऑफ गिल्स आप देख सकते हैं जो कि पाए जाते हैं। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस द गिल्स आर रीएब्जॉर्ब्ड, फेरेंजियल स्लिट्स आर क्लोज्ड एंड लंग्स बिकम्स फंक्शनल। जब मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट हो जाती है फ्रॉग की तो इनके गिल्स जो हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, फेरेंजियल स्लिट्स भी क्लोज हो जाती हैं और लंग्स जो हैं फंक्शनल हो चुके होते हैं। अब यहाँ पे आप टैडपोल्स देख सकते हैं, वाटर ब्रीदर्स दिखाए गए हैं जो कि फ्रॉग के, और ये आप एडल्ट फ्रॉग देख सकते हैं जो अपने लंग्स के थ्रू रेस्पायर करता है या स्किन के ज़रिए भी करता है या बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी परफॉर्म कर रहा होता है। सो दिस टैडपोल लार्वा इज मेटामॉर्फोज इनटू एयर ब्रीदिंग फ्रॉग्स। सो अगर हम कॉर्डेट्स के 4 बेसिक करैक्टर्स की बात करें, करैक्टरिस्टिक्स की, तो वो ये वाले हैं कि पहला जो है वो कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है। सेकंड इनका करैक्टर क्या है कि दे पोजेस फेरेंजियल गिल स्लिट्स। थर्ड इनका करैक्टर क्या है कि दे हैव ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। और फोर्थ इनका करैक्टर क्या है, दे पोजेस पोस्ट एनल टेल।
तो ये चारों चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो नोटोकॉर्ड जो है, नोटोन ग्रीक वर्ड विच मीन्स बैक एंड कॉर्डा मीन्स कॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड जो है ये आप इसकी देख सकते हैं कि जो भी कॉर्डेट्स होते हैं दे पोजेस अ नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड क्या है? इट इज़ अ स्पोर्टिव रॉड एंड इट एक्सटेंड्स मोस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द एनिमल इनटू द टेल। इट इज़ डॉर्सल टू द बॉडी कैविटी। अब ये देखें अगर आप, तो ये बॉडी कैविटी के बिल्कुल डॉर्सल ऊपर की तरफ है। ईच सेल कंटेन्स अ लार्ज फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल। This arrangement gives the notochord some turgidity. This turgidity compresses the anteroposterior axis. At the same time, the notochord is flexible. अब ये flexibility भी रखती है। It allows lateral bending like lateral undulations of a fish during swimming. तो ये फिश को भी स्विमिंग में हेल्प करती है और टैडपोल लार्वे को भी स्विमिंग में हेल्प कर रही होती है। कार्टिलेज और बोन पार्टली और एंटायरली रिप्लेसेस द नोटोकॉर्ड इन मोस्ट एडल्ट वर्टिब्रेट्स। जब एडल्ट वर्टिब्रेट डेवलप होगा तो उसकी ये नोटोकॉर्ड की जगह पे जो है वो क्या आ जाएगी? बोनी यानी कि जो है पार्ट्स आ जाएंगे, यानी कि बोन वर्टिब्रल कॉलम जो है वो इसको रिप्लेस कर देगा नोटोकॉर्ड को। सेकेंड, अब जो इनका करेक्टर है वो क्या है कि दे पोजेस फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अब फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है आप ये क्लेफ्ट से देख सकते हैं, गिल्स के अंदर जो है फेरेंक्स के अंदर, ये आप यहाँ पे जो आपको ये क्लेफ्ट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर फेरेंजियल स्लिट्स और क्लेफ्ट्स। तो फेरेंजियल स्लिट्स या क्लेफ्ट्स क्या हैं? फेरेंजियल स्लिट्स आर अ सीरीज ऑफ ओपनिंग्स। दीज ओपनिंग्स आर प्रेजेंट इन फेरेंजियल रीजन बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। In some chordates, diverticula from the gut are present in the pharyngeal region. These diverticula do allow an opening passageway to the outside. These diverticula are called pharyngeal pouches. The earliest chordates used the slits for filter feeding. Some living chordates still use them for feeding. Other chordates have developed gills in the pharyngeal pouches for gas exchange. Incomplete pharyngeal slits are developed in terrestrial vertebrates. और थर्ड जो बेसिक करेक्टर है कॉर्डेट का वो क्या है? ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। तो ट्यूबुलर, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ये आपको जो येलो में दिखाई गई है, तो ये डॉर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कॉर्ड है। तो द ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एंड इट्स एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉर्डेट सक्सेस। The nerve cord runs the longitudinal axis of the body. It is present just dorsal to the notochord. It also expands anteriorly as the brain. तो यहाँ पे देखें जिस तरफ ब्रेन है यहाँ पे एक्सपैंड करती जा रही है इंटीरियरली। दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। दीज सिस्टम्स आर यूज्ड फॉर सेंसरी परसेप्शन, इंटीग्रेशन एंड मोटर रिस्पॉन्सेज। तो ये नर्व कॉर्ड जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसका बनाता है। लास्ट करेक्टर ऑफ बेसिक करेक्टर ऑफ कॉर्डेट इज दे पोजेस पोस्ट एनल टेल। अब ये देख सकते हैं आपके मस्कुलर पोस्ट एनल टेल, आप ये देख सकते हैं इसकी। इट इज़ द फोर्थ कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स। अ पोस्ट एनल टेल एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली बियॉन्ड द एनल ओपनिंग। तो एनल ओपनिंग से भी पीछे जो है वो एक्सटेंड करती है। द नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम सपोर्ट द टेल। तो टेल बोन जो है वहाँ से जो अगर देखें तो नोटोकॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम उसको सपोर्ट कर रहा होता है। So in this slide you can see the larval external gills of fishes and amphibians. अब अगर आप फर्स्ट यहाँ पे देखें तो ये इलास्मोब्रैंक जो है उसके आपको गिल फिलामेंट्स ये दिखाए गए हैं इलास्मोब्रैंक्स के। तो ये गिल फिलामेंट्स। दूसरी तरफ अगर आप गिल फिलामेंट्स देखें शार्क्स के आपको दिखाए गए हैं। और थर्ड में अगर आप देखें तो एक्सटर्नल गिल जो हैं वो लंग फिशेस के आप देख सकते हैं। फोर्थ वन में लंग फिश जो है उसके एक्टोडर्मल गिल्स आपको ये दिखाए गए हैं, उनकी ये जो मॉर्फोलॉजी। फिफ्थ में अगर आप देखें तो ए पोडा जो है साइसीलिया जो है उसका दिखाया गया है ये लीफ लाइक एक्सटर्नल गिल्स जो है वो किस तरह का नज़र आ रहा है, लीफी अपीयरेंस है उसका। और फिफ्थ में अगर आप देखें तो सेलेमेंडर जो है फ्यूमा जो है उसके ऊपर कुलर फोल्ड्स और एक्सटर्नल गिल्स आप ये देख सकते हैं। सेवन्थ पे जो है वो आपको जो है वो यूरोडेला जो है एक्सोलोटल जो है उसका लार्वा दिखाया गया, जिसका हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि इसके एडल्ट्स भी मेटामॉर्फोसिस नहीं करते हैं और इनके अंदर हमेशा ही गिल्स रहते हैं, लंग्स नहीं डेवलप होते हैं एक्सोलोटल जो है। तो यूरोडेला एक्सोलोटल का लार्वा आप देख सकते हो, उसमें 3 एक्सटर्नल गिल्स ये आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से फ्रॉग जो है उसका टैडपोल लार्वा है, इट आल्सो पोजेस 3 एक्सटर्नल गिल्स। तो ये 3 एक्सटर्नल गिल्स आप उसके भी टैडपोल लार्वा के देख सकते हैं। यानी आप इसमें स्लाइड में देख सकते हैं
कि हर एनिमल जो है उसके जो एक्सटर्नल गिल हैं वो वेरी करते हैं उसके लाइफ साइकिल में, यानी उनकी जो है मॉर्फोलॉजी भी और उनकी क्वांटिटी या उनका जो नंबर है वो वेरी करता है with respect to species. Now in this slide we will discuss about the process of metamorphosis in frog. Frog starts as eggs which hatch and grow into tadpoles. After a week or more, the tadpole begins swimming and feeding on algae. Tadpoles feed on vegetation and have a long coiled intestine to digest algae. They have fish-like movement with the tail and undulating body movements. The respiratory organs of tadpole are external gills. At around 4 weeks, tadpole lose their gills and rely on lungs for respiration. By 6 to 9 weeks, hind limbs appear and then forelimbs. The organism may start consuming insects and other plant material, and the length of intestine is reduced. The tail shortens over time, is not much more than a stub around 12 weeks, and eventually it disappears altogether. In short, we can say that the fish form is changed into a land dwelling form. अगर आप इसका लाइफ साइकिल देखें तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले ये एग्स हैं, ये हैच करते हैं स्मॉल फिश लाइक लार्वा में जिनको टैडपोल्स कहा जाता है, जिनको आप ये यहाँ पे देख सकते हैं. And these tadpoles which grow larger as they feed on algae and bits of plant material in the water. As it begins metamorphosis, the tadpole grows hind limbs. तो जब ये metamorphosis कर रहा होता है ये अपने hind limbs को भी यहाँ पे ये जो है grow करना शुरू कर देगा. After both pairs of limbs are complete and the animal has exchanged its gills for lungs, the froglet crawls onto land. तो ये ज़मीन पे crawling शुरू कर देता है. The frog resorbs the rest of its tail and continue to grow. अब ये अपने टेल को रिजॉर्ब करता जाएगा, यानी कि शॉर्ट करता जाएगा, इसको जो है वो ख़त्म होती जाएगी इसकी टेल आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे ये ग्रो करेगा, until it reaches its adult body size. जब ये एडल्ट बॉडी साइज होगी तो इसकी टेल आप देख सकते हैं यहाँ पे विजिबल नहीं. तो ये एक जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल है फ्रॉग का, जिसमें आपको बताया है कि 6 से 9 वीक्स के दौरान क्या होता है, हाइंड लिम्स इसके अपीयर होते हैं. ये वाले जो हाइंड लिम्स आप देख रहे हैं ये 6 से 9 वीक्स के अंदर इसके अपीयर हो जाते हैं, और 4 वीक्स के अंदर जो है तकरीबन चौथे हफ्ते के दौरान जो है टैडपोल अपने गिल्स को लूज़ कर लेता है और अपने लंग्स के ऊपर रेस्पिरेशन करने लग जाता है, यानी गिल्स इसके ख़त्म हो जाते हैं और लंग्स पे रेस्पिरेशन का अमल शुरू कर देता है. Now we are going to start another topic which is temperature regulation in amphibians. As we all know that amphibians are cold-blooded animals, or they are also known as ectotherms, which means that they depend on external heat sources to maintain their body temperature. यानी अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इनको एक्सटर्नल हीट सोर्सेज का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि सनलाइट है या हीटेड रॉक सरफेस हो सकती है, तो वहाँ से ये क्या करते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं. यानी अगर कूलर एरियाज़ में जाएंगे तो बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, अगर वार्मर एरियाज़ में जाएंगे तो बॉडी टेम्परेचर इनका हाई हो जाएगा. दैट्स वाई दे आर नेम्ड एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. तो एम्बियंट एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर होगा उसके मुताबिक ही इनका बॉडी टेम्परेचर हो जाता है. तो एक्टोथर्म्स में जस्ट एम्फीबियंस ही नहीं आते, फिशेस भी हैं, रेप्टाइल्स हैं और कुछ इन्वर्टिब्रेट्स भी इसमें आ जाते हैं जो कि एक्टोथर्म्स हैं. एंड द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एन एक्वेटिक एक्टोथर्म इज़ यूजुअली वेरी क्लोज टू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग वाटर. अब जैसे ये एक्वेटिक अगर एम्फीबियंस की हम इसमें बात करें जो पानी में रहने वाले हैं तो उनका बॉडी टेम्परेचर वैसा ही होता है जैसा कि एनवायरनमेंट का या वाटर का टेम्परेचर होता है जो उसके इर्द गिर्द सराउंड कर रहा होता है. Ectotherms do not require as much food as warm-blooded animals of the same size. तो जो एंडोथर्म्स हैं यानी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं तो उसके जितनी इनको खुराक नहीं चाहिए होती एक्टोथर्म्स को, जो कि सेम साइज़ के एनिमल्स के साथ अगर हम कंपैरिजन इनका कर लें तो एक्टोथर्म्स जो कि यानी कि जो हैं ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन हो रही होती है, सीजनली अगर हम देखें तो टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा होता है. दे अवॉइड एक्सट्रीम्स बाय taking shelter in burrows or similar locations or by becoming dormant to some degree. तो अब ये क्या करते हैं, इनके अंदर बेसिकली बिहेवियरल एडेप्टेशंस पाई जाती हैं जो कि एम्फीबियंस हैं. और बिहेवियरल एडेप्टेशंस में पहली क्या है कि दे कूल देयर बॉडी बाय इवेपोरेटिव हीट लॉस. तो ये अपनी बॉडी को किस तरह से कूल करते हैं कि इवेपोरेशन करते हैं, इस तरह से हीट लॉस कर लेते हैं. एंड मैनी एम्फीबियंस आर नॉकटर्नल.
तो इन्होंने क्या करना है कि चूंकि ये जो हैं एम्फीबियंस मॉइस्ट एरियाज में रहना प्रेफर करते हैं, या इन्होंने अपने जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, उसके लिए क्या होता है, एम्फीबियंस रात के वक्त इमर्ज करते हैं, मोस्टली जो होते हैं नॉकटर्नल होते हैं वो। दे रिमेन इन कूलर बरोज और अंडर मोइस्ट लीफ लिटर ड्यूरिंग हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। तो जब दिन का हॉटेस्ट पार्ट होता है तो ये क्या करते हैं, बरोज के अंदर चले जाते हैं या मोइस्ट लीफ लिटर के नीचे पाए जाते हैं, यानी गले सड़े जो पत्ते होते हैं तो वहाँ पे उसके नीचे ये रहते हैं। जब भी गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा दिन के अंदर सूरज की रोशनी होती है तो इस तरह से अपने आप को जो है वो बचाते हैं मुख्तलिफ जो है इवेपोरेटिव वाटर लॉस से। एम्फीबियंस वार्म देमसेल्व्स बाय बास्किंग इन द सन और ऑन वार्म सरफेसेस। बॉडी टेम्परेचर में राइज 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव एयर टेम्परेचर। तो एयर टेम्परेचर से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनका बॉडी टेम्परेचर राइज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। तो जैसे आपको पहले बताया कि एम्फीबियंस को हम एक्टोथर्म्स भी कह देते हैं। दे आर आल्सो नोन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड दे आर आल्सो नोन एज पोइकिलोथर्म्स because they rely on external sources for heat and coolness to regulate their body temperature. अब अगर हम टेम्परेचर रेगुलेशन में देखें तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर इंक्रीज्ड आफ्टर इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। यानी एम्फीबियंस में क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी इंक्रीज करते चले जाते हैं। दस हीट आल्सो इंक्रीजेज द फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जैसे जैसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एंजाइम्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बेटर फंक्शनिंग की वजह से क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग भी इंक्रीज कर जाती है विद द इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। देयरफॉर बास्किंग आफ्टर द मील इज कॉमन विच इंक्रीजेज द ग्रोथ एंड फैट डेपोजिशन। तो अब ये क्या करते हैं कि धूप में जो है खाना खाने के बाद जो है एम्फीबियंस मोस्टली जो है वो सन बास्क कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर ग्रोथ भी ज़्यादा उनकी होती है और फैट डेपोजिशन बढ़ती चली जाती है। अब फैट डेपोजिशन का फ़ायदा क्या है, इट इज़ नेसेसरी फॉर पीरियड ऑफ डोरमेंसी। यानी जब ये डोरमेंट हो जाते हैं या हाइबरनेशन में चले जाते हैं तो ये अपने उस फैट से के डिपॉजिट्स को क्या कर रहे होते हैं, यूटिलाइज कर रहे होते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि वाई बास्किंग आफ्टर द मील इज कॉमन इन एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस जो है इनके अंदर खाना खाने के बाद सन बास्किंग क्यों होती है या ये धूप में क्यों बैठते हैं, बिकॉज बास्किंग आफ्टर मील इंक्रीजेज द फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जब ये सनलाइट के अंदर बास्किंग करते हैं तो उससे क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की फंक्शनिंग भी इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि हर एंजाइम का आपको पता ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। तो कुछ एंजाइम्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे जो है वो बेटर फंक्शनिंग उनकी होती है, तो दैट्स वाई वो एंजाइम्स ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, जिसपे मैक्सिमम उनका वर्क होता है या आउटपुट होती है, उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस एक टर्म पढ़ी, तो मेटाबॉलिज्म क्या है, इट इज़ अ टर्म दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इन मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ द सेल्स एंड द ऑर्गेनिज्म। यानी तमाम सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस जो कि सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसकी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इसमें कैटाबॉलिज्म आ जाती है टाइप और एनाबॉलिज्म आ जाती है। So increase in the body temperature results in increasing the rate of all metabolic reactions of the body, hence increasing the growth and fat deposition. Why amphibians have a wide range of tolerance of temperature? तो एम्फीबियंस के अंदर जो है वो टॉलरेंस ऑफ टेम्परेचर की इतनी वाइड रेंज क्यों पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या है, द डेली एंड सीजनल एनवायरमेंटल टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स वाइडली। तो अब इसमें क्या होता है कि चूंकि डेली बेसिस पे भी या मौसम में आती तब्दीलियों की वजह से क्या होता है कि जो टेम्परेचर एनवायरनमेंट का होता है वो बहुत ज़्यादा जो है चेंज हो रहा होता है। देयरफॉर एम्फीबियंस हैव वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस ऑफ टेम्परेचर। इसी वजह से इनमें ये अडेप्टेशन आ गई हुई है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो रेंज को टेम्परेचर टॉलरेंस की बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दी गई है कि क्रिटिकल टेम्परेचर जो सिलेमेंडर्स के लिए है इट लाइज बिटवीन -2 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी -2 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ये जो है क्रिटिकल टेम्परेचर है फॉर सेलेमेंडर्स। एंड फॉर सम एन्यूरन्स में आपको पता है फ्रॉग्स और टोड्स आ जाते हैं, लाई बिटवीन 3 to 41 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के अंदर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल थर्मल मैक्सिमम में कहा जाता है, ये एक ऐसी टर्म है जिसमें हम कहते हैं कि द मैक्सिमम बॉडी टेम्परेचर दैट कैन बी टॉलरेटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि टेम्परेचर की एक हद जहां तक जानदार कोई भी बर्दाश्त कर सकता है उसको हम उसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कह देते हैं। एंड व्हेन द बॉडी टेम्परेचर एक्सीड्स द अपर क्रिटिकल पॉइंट सेलुलर कंपोनेंट्स एंड प्रोसेस बिकम्स डिस्टर्प्टेड
and the organisms eventually dies. तो इससे क्या होता है कि तमाम सेलुलर कंपोनेंट्स या प्रोसेसेस जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के डिस्टर्ब कर जाते हैं और ऑर्गेनिज्म की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है अगर उसका जो क्रिटिकल थर्मल मैक्सिमम है या अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी ज़्यादा जो है टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म को मिल जाए। तो इसीलिए अब इनकी जो क्रिटिकल टेम्परेचर की रेंज है सैलमेंडर्स की वो -2 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि फ्रॉग्स और टोड्स के लिए कितनी है 3 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड। Now from this slide we will discuss another important topic which is amphibians in peril. Peril meaning that a serious and immediate danger, or it can be defined as exposing an animal to danger or to threaten an animal. So we will discuss here some points that frogs and salamanders are disappearing rapidly, and even we do not know the exact reasons of their disappearance. And some reasons are listed here like some points which are mentioned here. अब कुछ points हम discuss करेंगे, जैसे first point है local factors. तो local factors क्या हैं? Some local factors influence the amphibian population. These factors are cutting of forest. जंगलात को बहुत ज़्यादा काटा गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि नमी जो है ज़मीन की मुतासिर हुई, सनलाइट डायरेक्ट जो है वो वहाँ की ज़मीन पे पहुँचने लग गई, और एम्फीबियंस को चूँकि मॉइस्चर चाहिए होती है तो मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट वहाँ पे कम हो गई, तो इससे एम्फीबियंस की पॉपुलेशन कम होनी शुरू हो गई। इट अलाउज सनलाइट टू रीच एट द फॉरेस्ट फ्लोर्स, इट ड्राइज द मॉइस्ट हैबिटेट्स दैट एम्फीबियंस रिक्वायर। Mining, drilling, industrial and agricultural urbanization etc. also destroy the habitat. However, amphibians population are also disappearing in the regions where local damage has not occurred. तो कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिससे इनकी पॉपुलेशन जो है बड़ी सीवियरली इफेक्ट हुई है, जैसे माइनिंग एकांत कुनी के लिए जो है खुदाई वगैरह की जाती है, जो ड्रिलिंग तेल खुदाई के लिए जो है वो एरियाज़ को सर्च आउट किया जाता है, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एट्सेट्रा, और अर्बनाइजेशन यानी इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए या अर्बनाइजेशन के लिए क्या वो जंगलात मुसलसल काटे गए हैं, तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा सीवियरली अफेक्टेड हुई है। The second important factor which is responsible for declining in amphibians population is acid deposition. Embryos of amphibians are sensitive to the change of pH in their watery environment. तो पानी जो है उसमें अगर pH चेंज होगी तो जो इनके एम्ब्रियोज हैं एम्फीबियंस के वो बहुत सीवियरली इफेक्ट करते हैं। जैसे अब एग्जांपल दी गई है, अ pH of 5 और लेस किल्स मोस्ट एम्ब्रियोज ऑफ एम्फीबियंस। अगर 5 या उससे लेस pH होगी, यानी 3 है, 4 है या 5 तक है, तो इसमें बहुत बुरे तरीके से एम्फीबियंस के एम्ब्रियोज को ये इफेक्ट करती है। यानी ये एसिडिक pH है ना, 6 तक एसिडिक pH है, यानी कि 1 से 6 तक जो है। तो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द एनवायरनमेंट हैज़ बिकम 100 टाइम्स मोर एसिडिक देन इट वाज बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है तो उससे क्या हुआ है कि धुआं जो है फ़िज़ा में जाता है और वहाँ से फिर जो है वो इकट्ठा हो जाता है, यानी तो इस तरह से जो है वो एसिड रेन जो है वो फॉल करती है। Acid rain is caused by a chemical reaction that begins when compounds like sulfur dioxide and nitrogen oxides are released into the air. These substances can rise very high into the atmosphere where they mix and react with water, oxygen and other chemicals to form more acidic pollutants known as acid rain. तो एसिड रेन की वजह से जो है ये बहुत बड़ा एक इनके जो है वो एम्ब्रियोज के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। Now we will discuss about the third factor which is declining the amphibians population is ultraviolet radiations. Ultraviolet is electromagnetic radiation with wavelength from 10 nanometer to approximately 400 nanometer, and it is shorter than that of visible light बट लॉन्गर दैन एक्स-रेज। यानी ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है इनकी अगर हम बात करें रेंज की तो ये 10 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक के, लेकिन जो एम्फीबियंस के एग्स को डैमेज करती हैं, किल करती है रेंज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की, वो कितनी है 280 से लेके 320 नैनोमीटर की रेंज तक की जो रेडिएशंस हैं वो एम्फीबियंस के एग्स और एम्ब्रियोज को किल कर देती हैं, इतनी यानी ये सीवियर रेज होती हैं। तो UV ray radiation is present in sunlight and constitutes about 10% of the total electromagnetic radiations output from the sun. This short wave ultraviolet light also damages the DNA, यानी ये DNA को भी डैमेज करती है, इसलिए एम्फीबियंस के एग्स या एम्ब्रियोज को भी ये किल कर सकती है।
And the last factor is pollutants. Some pollutants are increasing acid deposition, depleting the ozone shield of the earth. Therefore, these pollutants are responsible for reduction in amphibians populations. In the last, these explanations do not completely explain the problems with amphibians populations. None of these problems exist in remote tropical regions where amphibian populations are experiencing similar declines. The causes are unknown. It is necessary that the government and funding agencies give funds to help scientists so that they can discover the causes of extinction of amphibians and stop their extinction.